welcome to the course Introduction to Computers. In today's lecture, we will discuss about system unit. First of all, we will see what is a system unit, what are the components that reside inside a system unit, how these components works, and what is the functionality of a system unit. So, in today's lecture, we will see the definition of a system unit, how data is represented in a computer system, what is a memory unit, and what are the different types of a memory. Also, we will discuss about the slots and expansion cords, what is expansion slot and what is a expansion cord. Whenever we attach different devices with a system unit, we can attach these devices outside the system unit. These points are called ports and connectors. At the end, we will see how data is communicated within a system unit. For this purpose, computer buses are used. For example, there is a system bus and peripheral bus. The purpose of the system bus is to control the communication with microprocessor and all other devices. The purpose of the peripheral devices is to enable the communication of peripheral devices and the microprocessor. There is also a power supply unit that will provide the power supply to the computer system. The purpose of the power supply is to convert the alternate current into direct current. There can be two sources of a power. One is a direct power. We attach the connector to the socket and the power supply will convert the alternate current into direct current. There can also be a battery to provide the power to the system unit. So the battery stores the power, and whenever there is no power, we can use our laptops or a cell phone without a direct power. So the battery will store the charge and it will provide us the facility to use our smart devices or the laptop where power is not available. So let's start. What is a system unit? System unit is the main body of the computer. What is the main body of the computer? We can say that in a system unit there is a circuit board that is called, this circuit board is called motherboard. So the purpose of the motherboard is to attach all the devices. For example, the microprocessor, the memory, also the disk drives. These all devices are attached to the motherboard. So the motherboard is a main circuit board that provides the functionality to attach different devices. मदरबोर्ड के ऊपर माइक्रोप्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स और जितनी भी हमारे पास बाकी डिवाइसेस हैं वो अटैच की जाती हैं। पावर सप्लाई का काम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, मेन जो हमारी सिस्टम यूनिट है, इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड होते हैं। पावर सप्लाई इसको पावर प्रोवाइड करती है, मेन हमें डायरेक्ट करंट देती है ताकि हमारा कंप्यूटर जो है ये प्रोसेसिंग कर सके। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फैंस अवेलेबल होते हैं। जब माइक्रो प्रोसेसर अपनी वर्किंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इस हीट को डेसिपेट करने की ज़रूरत होती है। तो इस हीट को डेसिपेट करने के लिए कूलिंग फैंस को यूज़ किया जाता है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास रैम है, रोम है, डिफरेंट तरह की मेमोरीज अवेलेबल है। रैम ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। इसी तरह हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रोम है इसका पर्पस कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करना होता है कि जो ही हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम से पढ़ी जाती हैं।
अब जितनी भी डिवाइसेस हैं इनसाइड द सिस्टम यूनिट, these are attached to the motherboard. So motherboard provides the connectivity to different components that are inside the system unit. अब ये जो मदरबोर्ड है इसका साइज और शेप डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम हैं, डेस्कटॉप्स हैं, लैपटॉप हैं और इसी तरह हमारे स्मार्टफोन्स हैं, इनके अंदर जो मदरबोर्ड है ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द डिवाइस. लेकिन हर एक डिवाइस के अंदर हमारे पास सिस्टम यूनिट होगी जिसके साथ सारी हमारी जो डिवाइसेस हैं वो अटैच्ड होंगी. इसी तरह हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या हम अपनी यूएसबीज को, फ्लैश ड्राइव्स को अटैच करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो ये भी सिस्टम यूनिट के साथ अटैच्ड होती हैं. सिस्टम यूनिट जो है ये हमें एक एंकर पॉइंट प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम अपनी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं. तो इनको हम पोर्ट्स कहते हैं. तो पोर्ट्स एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कंप्यूटर के आउटसाइड पे हैं जहाँ पे हम डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं. इसी तरह हमारे पास जो सिस्टम यूनिट है इसके साथ जो है वो बिल्ट इन हमारे पास कीबोर्ड भी हो सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस भी हो सकती हैं. जैसा कि लैपटॉप्स के साथ है कि सिस्टम यूनिट के ऊपर ही हमारे पास जो है वो लैपटॉप अटैच होता है और साथ ही हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस भी अटैच होती है. इसी तरह कुछ हमारे पास जो हैं वो ऐसे सिस्टम यूनिट अवेलेबल हैं कि जिनको हम डिस्प्ले के साथ ही अटैच कर सकते हैं. अब इसकी जो एग्जांपल है ये हमारे पास आईपैड्स वगैरह हैं कि आईपैड्स के अंदर टॉप पे हमारे पास डिस्प्ले होता है और बैक के अंदर हमारी जो जितनी भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो अटैच्ड होती हैं. तो ये हमें सिस्टम यूनिट जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसमें कैसे दिखाई देती है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. तो ये टॉप पे आप देखें तो हमें ये जो पावर सप्लाई यूनिट है ये नज़र आती है. इसी तरह इस पे डिफरेंट जो हैं वो चिप्स लगी होती हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं. हीट को डेसिपेट करने के लिए हमारे पास जो है वो कूलिंग फ़ैन है. इसी तरह वीडियो कार्ड है ताकि हम अपने मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले जो है वो देख सकें. कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ अ मॉडेम कार्ड. अब ये जो मॉडेम कार्ड है इसका पर्पज़ ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है ये एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन कर सकें. कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है ये इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डाटा है, लेकिन हमारा जब वायर के ऊपर डाटा ट्रैवल करता है तो वो एनालॉग सिग्नल ट्रैवल करता है. तो ये मॉडेम का ये काम है कि जब कंप्यूटर ने कम्युनिकेशन करनी है किसी और डिवाइस कंप्यूटर के साथ या इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो वहाँ पे जो है डिजिटल डाटे को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और जो ही वो डाटा रिसीव होता है तो बैक डिजिटल डाटा को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है. इसी तरह हमारे पास साउंड कार्ड है कि हमारा जो डिजिटल डाटा है इसको इसने कन्वर्ट करना है इनटू द एनालॉग साउंड के अंदर कन्वर्ट करना है और हमारी साउंड को कन्वर्ट करना है डिजिटल डाटा के अंदर. फिर हमारे पास जो सीडीज़ या डीवीडी ड्राइव्स हैं जहाँ पे हम अपनी सीडीज़ या डीवीडीज़ के डाटे को रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है इसमें परमानेंट जो स्टोरेज है या नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है ये हार्ड ड्राइव के अंदर होती है. तो हार्ड ड्राइव के अंदर डिस्क्स होती हैं जहाँ पे हम अपने डाटे को स्टोर कर रहे हैं. इसी तरह ये जितनी भी हमारी डिवाइसेस अटैच हुई हुई हैं ये बैक एंड के ऊपर एक कार्ड है, उस कार्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं. तो मदरबोर्ड इज़ अ सर्किट बोर्ड वेयर ऑल दी डिवाइसेस आर अटैच. इसके बाद हमारे पास ये कॉर्ड्स हैं. कॉर्ड्स जो हैं ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. हमें ये वायर्स नज़र आ रही हैं. ये वायर्स जो हैं ये पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही हैं. इसी तरह हमारे पास जो है वो रिबन हमें केबल्स नज़र आती हैं. तो ये जो केबल हैं ये डाटा की मूवमेंट के लिए यूज़ होती हैं. जैसे हमने कहा था कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सिस्टम बसेस हैं तो सिस्टम बसेस का काम डाटा की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट है. इसके अलावा इसके अंदर जो हैं वो एक्स्ट्रा केस हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा इसके अंदर फैंस अटैच होते हैं ताकि इसके अंदर जो हीट है वो डेसिपेट की जा सके या हीट को कम किया जा सके. तो हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा केस हैं यहाँ पे फैंस अटैच किया जा सकता है. अब हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मदरबोर्ड नज़र आ रहा है. तो मदरबोर्ड इस तरह का हमारे पास सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर आपको ये डिफरेंट कंपोनेंट अटैच हुए नज़र आ रहे हैं.
तो ये हमारे पास जो है बेसिकली स्लॉट्स हैं जहाँ पे हम अपनी डिवाइसेस को अटैच करते हैं। ये इन जो हमारे पास स्लॉट्स हैं इनके अंदर हम अपने जो रैम है या रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको अटैच करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमें इस साइड के ऊपर भी स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। तो इन स्लॉट्स के अंदर या इन स्लॉट में से किसी स्लॉट के अंदर हम जो है अपने डिफरेंट जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ग्राफिक कार्ड है, इस तरह के कार्ड्स को लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये जो रैम है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसी तरह हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है, इस तरह के कार्ड्स को या मॉडम है इनको अटैच करने के लिए डिफरेंट हमें स्लॉट्स नज़र आती हैं। इस सर्किट को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट सर्किट बोर्ड है। अगर ये डेड हो जाए तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है ये ऑन नहीं होता है। तो मेन जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है ये मदरबोर्ड की फंक्शनैलिटी है। अब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो भी जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा होता है। यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो एक पॉइंट बना हुआ है इसको भी हम स्लॉट कहते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये सॉकेट है या स्लॉट है जहाँ पे हमने माइक्रो प्रोसेसर को अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमें जो है वो स्पेयर स्लॉट्स भी नज़र आ रही हैं। इसी तरह इधर भी हमें स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। तो ये स्लॉट्स के अंदर जो है हम रैम को और डिफरेंट जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या हमारे पास ग्राफिक कार्ड है इनको हम अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है कि जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होता है और सिस्टम यूनिट के अंदर है, इसको हम सीपीयू कहते हैं। तो ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सारा कंप्यूटर का जो काम है ये माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करती है। दिस इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जितनी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं वो माइक्रो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करने होते हैं। जितनी भी कंप्यूटर की कम्युनिकेशन है सारी कम्युनिकेशन को ऑपरेशन को माइक्रो प्रोसेसर जो है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये कंट्रोल करता है। ये एक सिंगल चिप होता है, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर मल्टीपल चिप्स के अंदर भी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो अवेलेबल हैं। या विद इन वन प्रोसेसर डिफरेंट जो हमारे पास हैं वो माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं कि एक प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट कोर्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। आजकल जो प्रोसेसर हैं इनको हम मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं कि ये जो प्रोसेसर आ रहे हैं इनकी जो स्पीड है ये जो पहले प्रोसेसर होते थे इनकी निस्बत ज़्यादा है। तो इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर हो सकते हैं। हर प्रोसेसर को हम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं या इसको सिंपली हम कोर का नाम भी देते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होंगे उतनी हमारी जो स्पीड है ये इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी स्पीड हम मेजर कैसे करते हैं? तो इसके अंदर एक क्लॉक होती है। उस क्लॉक की जितनी ज़्यादा स्पीड होएगी उतनी हमारे पास जो है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, मीन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसके अंदर जो है वो तीन कंपोनेंट्स मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को हम कहते हैं ये कंट्रोल यूनिट है कि जिसने पूरे सिस्टम की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है, एक्शंस को कोऑर्डिनेट करना है। फिर हमारे पास सेकंड यूनिट है जिसको हम कहते हैं ALU या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं ये परफॉर्म होते हैं। इसी तरह जो टेम्परेरी स्टोरेज माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी होती है उसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। एक जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर जनरली जो है वो तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं कि इसमें कंट्रोल यूनिट है जिसने पूरे सिस्टम के एक्शन को कंट्रोल करना है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डीकोड करना है और उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो एक्शन होने हैं। तो इंस्ट्रक्शन पहले फैच की जाती हैं। फैच का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शन हमारी कंट्रोल यूनिट के पास आ गई है। फिर उनको डीकोड किया जाता है और उसके बाद डीकोड का मतलब ये है कि उस इंस्ट्रक्शन का मतलब समझा जाए और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन किसी डाटा पे अप्लाई होनी है, फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, इनको ऐड करना है, इंस्ट्रक्शन ऐड करने की है, तो 2 और 3 जो है ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसको ऐड करेगी। कंट्रोल यूनिट एक सिग्नल जनरेट करेगी, ALU को कहेगी कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। तो ये हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट्स हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, कि जो फर्स्ट है इसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और सेकंड वाला अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। फिर थर्ड जो है इनको हम रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स की जो डेफिनेशन ये है कि ये स्मॉल मेमोरी होती है
लेकिन सबसे फास्ट जो है हमारे पास मेमोरी है। रजिस्टर भी जो है हमारे पास ये वोलेटाइल मेमोरी है कि मीन जब पावर ऑफ होएगी तो इसके कंटेंट ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन जनरली इसका साइज़ जो है ये बहुत थोड़ा होता है, ये 2, 4 या 8 बाइट इसका साइज़ होता है। पर्पज़ इसका ये होता है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारा टेम्परेरी डाटा है उस डाटे को और इंस्ट्रक्शंस को ये होल्ड करता है, या हमारे को अगर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं तो उनको भी ये होल्ड करेगा। अच्छा, इनका हमारे रजिस्टर का जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतनी हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मीन हम अपने डाटे को बफर कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो कैलकुलेशन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर सिस्टम है जिसको हम 32 बिट कहते हैं, तो इसके अंदर जो इसका साइज़ होता है वो 4 बाइट होता है, और जहाँ पे हमारे पास जो है वो 64 है वहाँ पे हम कहते हैं कि इसका जो साइज़ है ये 8 बाइट हो सकता है। तो ये इसके डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं अवेलेबल हैं कि साइज़ हमारे पास 2 इसका बाइट भी हो सकता है, मीन 16 बिट हो सकता है, 4 बाइट हो सकता है, मीन 32 बिट्स हो सकता है, या 8 बाइट्स या 64 बिट्स भी हो सकता है। तो ये एट अ टाइम हमारा जो प्रोसेसर है ये कितने डाटे को हैंडल कर सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है वो रजिस्टर की कैपेसिटी कितनी है। हर एक रजिस्टर का जो है वो डिफरेंट पर्पज़ है। इसके अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं AX रजिस्टर है, BX है, CX है, इसी तरह हमारे पास जो है वो DX है। तो डिफरेंट तरह के रजिस्टर जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास है कि इंस्ट्रक्शंस हमारी कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, तो इसको हम कहते हैं मशीन साइकिल। तो मशीन साइकिल्स के अंदर जो मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस हैं ये प्रोसेसर की तरफ आती हैं कि अगर ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और ये रैम है, तो रैम से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आती है, और ये कहाँ पे आती है? रजिस्टर्स के अंदर आती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैच करना। इंस्ट्रक्शन जो है माइक्रो प्रोसेसर अपने पास लेके आ रहा है, जब अपने पास लेके आता है तो उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी कोड करना। तो डी कोड करने के बाद जब उसको पता चलता है फॉर एग्जांपल 2 नंबर से 2+3 था, तो ये अपने पास लेके आता है, तो इसको पता चलता है कि इसने प्लस करना है। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो सिग्नल जनरेट करती है, ALU को सिग्नल देती है कि 2 और 3 ये जो 2 नंबर हैं इनको ऐड कर दो। तो ये जो ALU हमारी यूनिट है ये अकॉर्डिंगली फंक्शन परफॉर्म करती है, और उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट होता है 5 वो स्टोर हो जाता है। तो इस साइकिल को हम कहते हैं मशीन साइकिल या फैच, डी कोड, एग्जीक्यूट, स्टोर साइकिल। इसके जो हैं वो 2-3 नाम हो सकते हैं कि मशीन साइकिल कह सकते हैं, फैच, डी कोड, एग्जीक्यूट साइकिल कह सकते हैं, या इसको फैच, डी कोड, एग्जीक्यूट, स्टोर साइकिल भी कह सकते हैं। फैचिंग का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शन और डाटे को जो है हमने अपने पास लेके आना है। डी कोड का मतलब ये है कि ट्रांसलेशन करनी है कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी इसका पर्पस क्या था, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कंट्रोल यूनिट का काम है इसको डी कोड करना, और उसके बाद जब डी कोड कर लेती है तो उसको पता चल जाता है कि एक्शन करना है, तो वो जो एक्शन है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब ये है कि हमने उस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करते हुए डाटे के ऊपर अपने रिजल्ट गेन कर लिए हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी है। जब हमारी आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है तो इसको हमने रिजल्ट्स को स्टोर भी करना होता है। तो स्टोर करने के लिए हम जो है वो मेमोरी को यूज़ करते हैं। तो ये इन जनरल हमारे पास मशीन साइकिल है कि मशीन साइकिल कैसे काम करता है। फिर हमारे पास हमने कहा था कि माइक्रो प्रोसेसर या CPU की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसकी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम सिस्टम क्लॉक को यूज़ करते हैं। तो सिस्टम क्लॉक एक ऐसी हमारे पास कंपोनेंट है कि जिसने जो है वो क्लॉक टिक्स जनरेट करनी होती है। अब जितनी ये क्लॉक टिक्स ज़्यादा होंगी उतनी हमारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसने बेसिक जो है वो टाइमिंग जनरेट करनी है। तो ये जो टाइमिंग इसने जब जनरेट करनी है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम मेजर करते हैं इन हर्ट्ज़। तो जितनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होगी क्लॉक की उतनी हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब इसकी जो स्पीड है इसको हम कहते हैं ये क्लॉक्स हमारे पास साइकिल है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब इसका सिग्नल जनरेट होता है तो इस तरह से होता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको हम कहते हैं 1 साइकिल है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे एंड हो रहा है तो हम कहते हैं 2nd साइकिल है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़। तो जनरली आज का जो अवेलेबल प्रोसेसर हैं इनकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है। जितनी ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी, मीन हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उतना स्पीड से बिहेव करेगा।
इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, तो रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल सिग्नल है। द डिजिटल सिग्नल कैन बी हाई और लो। हम हाई को कहते हैं कि यहाँ पे हम 1 को स्टोर कर रहे हैं और लो पे हम कह रहे हैं 0 को स्टोर कर रहे हैं। तो डाटा की कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट होती है, जिसको हम जो है वो बिट कहते हैं। तो बिट इन शॉर्ट हमारे पास जो है ये बाइनरी डिजिट है। अब इसका जो बेसिक पर्पज़ ये है कि हमारा जो डाटा की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ये बिट होगी। अब हमने पहले कहा था कि अगर हमारे पास 8 बिट्स होंगी तो ये हमारे पास जो है वो 1 बाइट बन जाएगी। तो ये हमारी कंप्यूटर के अंदर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है कि हमारा जो सिग्नल है इसकी वैल्यू हाई होगी तो हम कहेंगे 1 है, अगर ये हमारे पास लो होगी तो हम कहेंगे 0 है। तो ये जो डाटा है कंप्यूटर के अंदर जब भी स्टोर करना है तो इसकी 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 या 1। तो 0 1 को हम बिट कहते हैं। अक्सर ये MCQs के अंदर पूछा जाता है कि बिट स्टैंड फॉर, तो बिट हम कहते हैं बाइनरी डिजिट हमारे पास है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा है। जब हम 8 बिट्स को मिला देते हैं तो इसको हम बाइट कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 1024 जो है वो बाइट होंगी तो इसको हम कहेंगे 1 किलो बाइट। ये हमारे पास इन जनरल जो है वो डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है और इसके यूनिट क्या क्या हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि अपर केस या लोअर केस के साथ अगर लेटर्स लिखें तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि बिट और बाइट में क्या फ़र्क होगा। कि अगर हमारे पास ये स्मॉल लेटर के अंदर है तो हम जो है इसको बिट रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह बड़ा है तो हम बाइट करेंगे। और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम ने जो स्क्रीन पे ए लिखना है कैपिटल के अंदर या ए लिखना है स्मॉल लेटर के अंदर, इसी तरह जो हमारे पास बी है ये लिखना है स्मॉल लेटर के अंदर या कैपिटल लेटर्स के अंदर, या हमें कैसे पता चलता है कॉमा लिखना है। तो हम कहते हैं हर एक जो करेक्टर है इसके कोड्स होते हैं, इन कोड्स को हम कहते हैं आस्की कोड। तो हर जो करेक्टर है इसके आस्की कोड डिफरेंट होते हैं। आस्की कोड कुछ भी नहीं होते, ये 0 1 की फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो हर करेक्टर की एक वैल्यू होती है। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन जितनी भी कंप्यूटर में स्टोर करेंगे ये बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती हैं। बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होंगे। तो जिस तरह हमने कहा था कि सारे करेक्टर्स जो हैं उसके लिए वाइडली नोन स्टैंडर्ड जो है इसको हम आस्की कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है इसके लिए कौन से कोड यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो जनरल स्टैंडर्ड है उसके अंदर आस्की कोड के अंदर 8 बिट्स को हम यूज़ करते हैं टू इनकोड द डाटा, कि जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं इसी तरह हमारे पास जो हैं वो करेक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को या स्पेशल करेक्टर्स हैं इनको इनकोड करने के लिए आस्की करेक्टर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कैपिटल अगर ए है या लोअर केस ए है तो दोनों की जो आस्की वैल्यू वो फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल हमारे पास लेटर है ए, इसका जो आस्की कोड है दैट इज़ 0 1 5 टाइम्स 0 और फिर 1 है। और अगर हमारे पास जो है वो लोअर के अंदर है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर 0 1 1 4 टाइम्स 0 है और फिर 1 है। तो दोनों कोड्स हमारे पास डिफरेंट हैं। इसके बाद हमारे पास है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मेमोरी जो है हमारे पास ये डाटा को स्टोर करती है। एक मेन डाटा जब हमने स्टोर करना होता है तो इसकी 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो हम इसको परमानेंट स्टोर कर लें या इसको हम जो है वो टेम्परेरी स्टोर करें। तो जहाँ पे हम डाटे को स्टोर करते हैं इसको हम मेमोरी कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो हमारी मेमोरी है इसको हम मेन मेमोरी का नाम दे देते हैं। अब ये जो मेन मेमोरी है इन जनरल हम कहते हैं कि जहाँ पे हमारा डाटा जो है जब माइक्रो प्रोसेसर या CPU अपनी प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो इस यहाँ पे टेम्परेरी अपने डाटे को स्टोर करता है। इसीलिए इस मेमोरी को हम कहते हैं ये वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर है कि इंस्ट्रक्शन और डाटा जो है वो टेम्परेरी यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टोर हो रहा है। अब मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है या मेमोरी को हम रीड कैसे करते हैं। तो मेमोरी को रीड करने के लिए हम पूरी एक बाइट को एक टाइम के ऊपर पढ़ते हैं। इसके अंदर एक हमारे पास जो है वो सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जहाँ बिट जहाँ पे स्टोर होती है इसको हम सेल कहते हैं। 8 जब ये मिलते हैं तो इस पूरे को हम जो है वो बाइट कहते हैं। लेकिन जो डाटा हमारा रीड होता है वो एक बाइट के अंदर मीन हम बाइट के अंदर अपने डाटे को रीड करते हैं। अगर तो हमारी बस की बिट जो है वो 32 बिट होगी तो हम 4 बाइट को एक टाइम पे रीड करेंगे। अगर उसकी जो बिट है वो 64 बिट
होगी, मीन 8 बाइट जो है एक टाइम पे हम अपने डाटे को रीड या राइट कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलता है कि डाटा कहाँ पे स्टोर करना है, तो हम कहते हैं हर जो हमारे पास ये जो जहाँ पे हम डाटा स्टोर करते हैं हर लोकेशन को हम एक एड्रेस असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इस तरफ मेमोरी है, तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास ये 8 बाइट का एक हमने बनाया हुआ है, हर एक का जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है। इस एड्रेस से जो हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम है कि कितने टाइम के अंदर हम मेमोरी को लोकेट करके वहाँ से डाटे को रीड और राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है। तो जो जहाँ पे रैंडम एक्सेस होती है वहाँ पे हमारा जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो कम होता है। अगर सीक्वेंशियल एक्सेस होगी तो ये जो मेमोरी एक्सेस टाइम है वो ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास ये रैंडम एक्सेस होगी तो वहाँ पे मेमोरी एक्सेस टाइम कम होएगा। ये हमारे पास है कि हम जब इसकी डाटे की मेमोरी की मेजरमेंट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास यूनिट कौन कौन सी हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ 1 बिट हमारे पास है। फिर हम कहते हैं 1 बाइट है, तो 1 बाइट इक्वलेंट टू 8 बिट्स है। इसी तरह 1 किलो बाइट हमारे पास है, तो उसकी कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यूज आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास था कि मेमोरी की दो टाइप्स थी, एक वोलेटाइल है और सेकंड नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल ऐसी मेमोरी है कि जब पावर इसकी जो है वो ख़त्म होगी तो उसके कंटेंट जो है वो ज़ाया हो जाएंगे, मीन ये टेम्परेरी मेमोरी है। जो नॉन हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है, ये जब पावर ऑफ भी हो जाएगी तो अपनी कंटेंट को ज़ाया नहीं करेगी, मीन हमारे पास जो है वो परमानेंट मेमोरी है। तो वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल हमारे पास रैम है, कैश मेमोरी है या CPU के रजिस्टर्स हैं। नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल हमारी जो है वो रोम है, फ्लैश मेमोरी है, या इस तरह हमारी जो USB वगैरह है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं, उसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर रहता है। अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो डाटा ज़ाया नहीं होता। रैम को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा आज में हम देख लेते हैं कि रैम जो है स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो हमारे पास चिप है ये मदरबोर्ड के ऊपर जो स्लॉट है वहाँ पे लगी होती है। अब ये हमें कैसे नज़र आती है, तो हमें ये स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये हमारी जो है वो रैम है या टेम्परेरी मेमोरी है। इसके अंदर हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन सारा जो काम होगा ये टेम्परेरी होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम अपना डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है जनरल आजकल जो हमारे पास आ रही है ये GBs के अंदर आ रही है कि इसकी जो कैपेसिटी है 4 GB से लेकर 32 GB तक वेरी करती है, लेकिन इससे पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल हैं जहाँ पे इससे भी ज़्यादा जो है वो मेमोरी है। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो हमारे कंप्यूटर की एफिशिएंसी के अंदर रैम का जो साइज़ है ये एक मेजर फैक्टर है जो इस चीज़ को डिटरमिन करता है कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है इसकी स्पीड कितनी आएगी। फर्दर हम देखते हैं तो रैम की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं DRAM है और दूसरी SRAM है। DRAM के अंदर जो है वो डाटा दोनों के अंदर टेम्परेरी हमारे पास स्टोर होता है, लेकिन जो DRAM है इसके साथ हमारे पास जो है वो जब डाटा इसके अंदर हम स्टोर करते हैं तो ये स्लोली जो है वो डाटा हमारा जो चार्ज है वो कम होना शुरू हो जाता है, मीन हमें इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है। अब जिस टाइम के ऊपर हम इसको रिफ़्रेश कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसकी जो स्पीड है वो कम होती है। लेकिन इसका हमें बेनिफिट क्या है कि इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होएगी। तो DRAM जो है इसको हमें दोबारा से रिफ़्रेश करना पड़ता है, मीन दोबारा से इसको चार्ज करना पड़ता है। जब हम रिफ़्रेश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम ना रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो कम है। इसके मुकाबले में जो सेकंड रैम है इसको हम कहते हैं SRAM है। इसके अंदर ऐसा मटेरियल है जो चार्ज को ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड कर सकता है, इसको मीन हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती और इसीलिए इसका जो एक्सेस टाइम है वो थोड़ा होगा, मीन जल्दी इसको हम एक्सेस कर लेंगे, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी। जनरली जो SRAM चूँकि महंगी होती है इसको नॉर्मल जो मेन मेमोरी है उसके तौर पे यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि जो कैशे मेमोरी है उसके तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। कैशे मेमोरी हमारे पास इस तरह से है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या माइक्रो प्रोसेसर है जो सारा एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रैम है। तो रैम का जनरली जो एक्सेस टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, मीन हमें इसमें टाइम कंज्यूम होता है जब ये रिफ़्रेश कर रहा होता है अपने चार्जेस को। उसके लिए दरमियान के अंदर एक और डिवाइस लगा दी जाती है जो हमारे डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी होल्ड करती है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है ये रैम की निस्बत कम होती है। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास SRAM है या कैशे मेमोरी है। ये हमारे डाटा इंस्ट्रक्शन को टेम्परेरी होल्ड कर देगी और हमारा माइक्रो प्रोसेसर ने जब भी एक्सेस करना होगा इसमें से उस डाटे को एक्सेस कर लेगा। अगर इस तरह से नहीं मिलता तो फिर जो है वो मेन मेमोरी से एक्सेस करेगा।
इसको हम कहते हैं कि कैशे जो है वो हिट हुई है या मिस हुई है। तो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जब नेक्स्ट फर्दर कोर्सेज पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जब हम कैशे को एक्सेस कर रहे होते हैं, अपनी मेमोरी को फास्ट एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर हमें डाटा नहीं मिलता हमारी ये जो कैशे मेमोरी है, तो उसको हम कहते हैं कि कैशे जो है वो मिस हुई है। इस केस के अंदर हमारा रैम से दोबारा डाटा जो है वो एस रैम के अंदर या कैशे मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र होता है और फिर इसको माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है। जितनी हमारे पास जो है वो कैशे हिट ज़्यादा होगा तो उतनी हमारी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास रोम है। तो रोम हम कहते हैं कि ये रीड ओनली मेमोरी है, कि मीन इसमें से सिर्फ डाटे को हम रीड कर सकते हैं, इसमें डाटे को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और इसमें डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर हुआ है। ये हमने पहले भी बात की थी कि इसका जो यूज़ होगा कि जब हम अपने कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट के जितने भी फंक्शनैलिटी है या इसके रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शन हैं ये रोम के अंदर राइट होती हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो रोम चिप को इन जनरल हम जो है फॉर्मवेयर भी कहते हैं कि इसके अंदर ऐसा कोड स्टोर है जो हमें हेल्प करता है या ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं कि जब हम अपने कंप्यूटर को जो है वो स्टार्ट करना है तो वहाँ पे हमें ये काम आता है। ये हमारी जो मेमोरी ऐसी है जो नॉन वोलेटाइल है, अगर पावर ऑफ भी हो जाएगी तो इसके कंटेंट जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। इसकी भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं पी रोम। पी रोम हमारी ऐसी मेमोरी है या ऐसी रोम है जिसको सिर्फ हम एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर लिखने के दौरान एरर आ गया तो हमारी ये जो पी रोम है ये ज़ाया हो जाएगी। तो पी से स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इनिशियली ब्लैंक होती है, एक ही दफ़ा इसमें हम अपने डाटे को राइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ई प्रोम है। इसको हम कहते हैं रीजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसी है जिसको हम जो है वो रीड राइट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्पेशल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो स्पेशल डिवाइसेस के थ्रू मीन अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू हम इसको रेज करके दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। इससे जो बेहतर है उसको हम कहते हैं ई प्रोम है। तो इसमें के अंदर चूँकि अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ नहीं हो रही बल्कि इलेक्ट्रिकली हम इसको अरेंज भी कर रहे हैं और इसके बाद इसको दोबारा से हम प्रोग्राम भी करेंगे। तो इसलिए इस मेमोरी को हम जो है वो इलेक्ट्रिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं कि हम अपने डाटे को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं और जितनी दफ़ा चाहें इस अपने डाटे को हम दोबारा से रीप्रोग्राम इसको कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी जनरली होता है कि कितनी दफ़ा हम इसके अंदर डाटे को रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेजर हमें फंक्शनैलिटी मिली या फीचर ये मिला है कि इसको इलेक्ट्रिकली हम अरेंज कर सकते हैं और दोबारा से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर इन जनरल रैम और रोम के डिफरेंस हैं कि रैम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये परमानेंट है मीन नॉन वोलेटाइल है। ये हमारे पास जो है वो वोलेटाइल है, इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग कोड लिख देता है, ये हमारा जो CPU है इसको एक्सेस करता है, इसमें हम जो रीड और राइट बार बार कर सकते हैं। तो जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑन होता है तो माइक्रो प्रोसेसर इसी से इंस्ट्रक्शन को रीड और राइट कर रहा होता है। इसकी जो कैपेसिटी है ये स्मॉल होती है, जबकि हमने कहा था ये जो हमारी रैम है इन जनरल जो है ये डी रैम होती है कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसकी जो हमारे पास कैपेसिटी है ये ज़्यादा आती है, क्योंकि ये चीपर होती है इसलिए ये ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर इसको हम परचेज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है रोम के लिए डाटा राइट करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस की जरूरत होती है। ये हमारा जो है वो इन जनरल जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें डाटे को रीड और राइट करता है। इसके बाद हमारे पास कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी जैसे मैंने पहले बताया था कि ऐसी मेमोरी है जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करेगी कि डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है रैम के बाद इसके अंदर स्टोर होंगी ताकि माइक्रो प्रोसेसर इसको फास्ट एक्सेस कर ले। तो ये हमने कहा था ये एस रैम होगी, स्टैटिक रैम होगी कि जहाँ पे हम अपने रीड और राइट जो है वो ऑपरेशन फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इससे हमारी एफिशिएंसी या स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसकी जो हमारे पास मेमोरी है ये स्मॉल होती है, लेकिन ये बड़ी एफिशिएंट या फास्ट होती है क्योंकि ये एस रैम जो है इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है ये भी ज़्यादा होती है। इस कॉस्ट की वजह से हम इसको स्मॉल अमाउंट की जो मेमोरी है उसको हम यूज़ करते हैं या अटैच करते हैं। अब ये जो जब हमारे पास ये कैशे मेमोरी आती है तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। यहाँ तो कैशे मेमोरी जो है वो रैम और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान में होगी। अगर ये रैम और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान के अंदर होगी, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हमारे पास रैम है, ये दरमियान में कैशे मेमोरी है और इस साइड पे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है। अगर तो ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट नहीं होगी तो फिर हमारे पास जो है वो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है। जब हम अपने किसी भी चीज़ को माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट बनाएंगे
क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है ये बड़ा हमारे पास छोटे साइज़ के अंदर होता है, तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जो आउटसाइड हमारे पास कैश मेमोरी होती है, इसको इन जनरल जो है हम L3 मेमोरी कहते हैं कि लेवल 3 के ऊपर है, कि ये रैम और माइक्रो प्रोसेसर के दरमियान है। इसके बाद हमारे पास इसका जो सेकंड लेवल आता है, इसको हम कहते हैं L2 मेमोरी है। L2 जो है ये हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर का हिस्सा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ प्रोसेसर के साथ ये हमारा उसके साथ इंटीग्रेटेड होगी या उसका पार्ट होगी, कुछ के साथ हो सकता है कि ये अलग से हो। तो ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि ये जो L1 कैशे है, L2 कैशे है, इनको CPU का पार्ट बना दिया गया है, जबकि L3 जो है ये आउटसाइड द प्रोसेसर होती है। जितनी मेमोरी या हमारे पास ये जो स्पेस है ये हमारी प्रोसेसर के साथ होगी, उतनी हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर हमारे पास कोई भी मेमोरी जो है वो प्रोसेसर से जितनी दूर हम करते जाएंगे, उतनी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। जितनी हम अपनी मेमोरी को प्रोसेसर के साथ लेते आएंगे, उतनी हमारी उसकी स्पीड जो है प्रोसेसर की इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इसको मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो जितनी प्रोसेसर के बिल्कुल करीब मेमोरी होगी, उतनी हमारा जो प्रोसेसर है फास्ट एक्ट करेगा, लेकिन उतनी उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होती हैं कि जो कैश मेमोरी है इसको प्रोसेसर का पार्ट बनाना है या आउटसाइड का हमारे पास जो है माइक्रो प्रोसेसर होती है। तो ये डिपेंड करता है, जितनी हमारे पास इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी और जितने क्लोज होएगी टू द माइक्रो प्रोसेसर, इतनी इसकी जो है कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन साथ साथ हमें जो है वो ज़्यादा स्पीड भी मिलेगी। तो ये फैक्टर हैं जिससे हम पता चलता है कि कैश मेमोरी जो है L1 है, L2 है या L3 है। तो L1 जो है ये बिल्ट इन टू द प्रोसेसर है कि प्रोसेसर का ही पार्ट होती है। जनरली इसका जो साइज़ है 32 KB से लेकर 64 KB तक होता है। L2 जो है ये हमारे पास जो है L1 से स्लो होती है। इसके अंदर दो ऑप्शन हैं, या तो उसका पार्ट होगी या हो सकता है उससे आउटसाइड पे हो। तो देखें इसकी जो कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसकी चूँकि हमारे पास ये उससे बाहर आ गई है या उससे हमारी L1 जो है उसकी से इसकी स्पीड कम है, तो इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। L3 जो है ये जनरली मोस्टली बल्कि प्रोसेसर से बाहर ही होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। और इन जनरल जो है L3 कैशे की जो कैपेसिटी होगी ये L2 की निस्बत भी ज़्यादा होगी, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 8 MB से लेकर 24 MB तक है। आजकल इससे ज़्यादा कैशे मेमोरी भी अवेलेबल है। अब प्रोसेसर डाटे को रीड कैसे करता है? जब भी माइक्रो प्रोसेसर को किसी डाटे की जरूरत होती है, सबसे पहले वो देखता है कि वो डाटा L1 कैशे के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसकी स्पीड एक्सेस की है वो L1 की है। जब उसको L1 से नहीं मिलता, फिर वो L2 में से देखेगा। फिर जब प्रोसेसर को L2 में से भी नहीं मिलेगा, फिर L3 में से भी देखेगा। फिर जब इसको इससे भी नहीं मिलेगा, तो फिर जो है वो रैम से डाटा हमारा जो है फर्दर वो देखेगा। तो ये हमारे पास ऑर्डरिंग है कि माइक्रो प्रोसेसर डाटे को कैसे रीड करता है। सबसे पहले वो L1 कैशे से रीड करता है, फिर L2 से, फिर L3 से, फिर रैम से। अगर उसको L1 से मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज L2 की तरफ मूव होगा। अगर L2 से भी नहीं मिलेगा, L3 को देखेगा। अगर L3 से नहीं मिलेगा तो रैम से मिलेगा। रैम से डाटा मिलना लाजमी है। अगर रैम से नहीं मिलता तो हमारे जो प्रोसेसर हैं उनकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। अब ये जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो देखेंगे कि जो रैम है इसके अंदर डाटा हमारे पास हार्ड डिस्क से डाटा कैसे मूव होता है और उस डाटे को हम कैसे रीड या राइट करते हैं। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स होगा जिसके अंदर इसकी डिटेल जो है वो डिस्कस की जाएगी। अभी तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि L1 कैशे जो है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद L2 की है, फिर L3 की है, फिर रैम की है, और इसके बाद हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं लाइक हार्ड डिस्क है, CD डिस्क है, उनकी बारी आती है। इसके बाद हमारे पास है जी फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी हम कहते हैं ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे हमारे पास में USBs हैं, इसी तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेज हैं, या आजकल जो है वो SSDs आ रही हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइसेज आ रही हैं कि लैपटॉप के साथ SSDs आ रही हैं, जिनके अंदर जो है कोई मैकेनिकल हमारे पास डिवाइस नहीं है, रोटेशन नहीं होती, बल्कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली डाटे को सेव करती हैं। तो इन डिवाइसेज को हम जो है वो फ्लैश मेमोरी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी जो आजकल पॉपुलर होती जा रही है और कॉमन होती जा रही है। इसमें डाटा जो है उसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, दोबारा से राइट भी कर सकते हैं। हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, इसी तरह हमारे जो iPad वगैरह हैं या USBs वगैरह हैं, इनके अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है। या हमारे ये जो म्यूज़िक प्लेयर्स वगैरह, हमें MP3 प्लेयर्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो उनके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। इन जनरल ये हम ये कह सकते हैं ये फ्लैश मेमोरी जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसके अंदर डाटे का जो रीड और राइट का प्रोसेस है ये इलेक्ट्रिकली होना है, कि हमने इसको सिग्नल्स के थ्रू डाटे को रीड और राइट कर सकते हैं। अगर जब हम अपने डाटे को इलेक्ट्रॉनिकली रीड और राइट करते हैं, इससे हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है।
इसीलिए हमारे जो स्मार्टफोन है, पीडीएफ, टैबलेट या पोर्टेबल जो मीडिया प्लेयर्स हैं, इनके साथ जो है वो फ्लैश मेमोरी यूज़ हो रही है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ CMOS। तो CMOS हम कहते हैं कि ऐसा हमारे पास जो है मटेरियल है जो नॉन वोलेटाइल है, मीन ये रैम के सिमिलर है, लेकिन इसमें जब हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे तो वो नॉन वोलेटाइल होगा। CMOS हम कहते हैं स्टैंड्स फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, कि ऐसा मटेरियल है जो हमारे चार्ज को जो है वो स्टोर करेगा, परमानेंट स्टोर करेगा। ये हमारे पास हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसका मेन पर्पस जो हमारे पास ये है कि इसके में बेसिकली जब हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सामने डिस्प्ले होती है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ये CMOS के अंदर स्टोर हुई होती है। अब ये कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन है, कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, माइक्रो प्रोसेसर किस तरह का है, इसकी क्लॉक स्पीड कितनी है। तो ये सारी चीज़ें, या हमने अगर पासवर्ड बायोस का सेट किया हुआ है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये CMOS या कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के अंदर स्टोर होगी। तो ये जो चिप है ये नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट को, और फिर हम देखेंगे एक्सपेंशन कॉर्ड्स को। तो ये हमें स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिफरेंट तरह की स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। इन स्लॉट्स के अंदर जो है हम अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम अपनी जो डिफरेंट कार्ड्स हैं, जैसे कि ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, इन चीज़ों को इंसर्ट करेंगे। तो जहाँ पे इनको हम इंसर्ट करते हैं इनको हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। डिफरेंट तरह की ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑडियो कार्ड करना है, वीडियो कार्ड हमारे पास है, मॉडम है, इसी तरह मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं, रैम है, तो उनको अटैच करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट तरह की स्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब ये बेसिकली जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड हमें कनेक्शन पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपनी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। तो मॉडर्न जो हमारे पास कंप्यूटर हैं उसके अंदर डिफरेंट जो कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी हमारा मदरबोर्ड का पार्ट हैं, लेकिन हमारे पास ये स्लॉट्स भी अवेलेबल होती हैं कि अगर हम उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना चाहें तो यहाँ पे न्यू कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने के लिए एक्सपेंशन कार्ड यूज़ होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड जो है एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर अटैच करते हैं। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो सकता है, ऑडियो कार्ड हो सकता है, वीडियो कार्ड हो सकता है, जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो अटैच कर सकते हैं। अब एक्सपेंशन कार्ड लगाने का पर्पज़ ये है कि हम अपनी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं या इन्हांस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने वीडियो गेम्स वगैरह प्ले करनी होती हैं तो हम एक न्यू जो है वीडियो कार्ड परचेज करते हैं और उसको अपने मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। तो पोर्ट्स हम कहते हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अपनी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आपको USB पोर्ट नज़र आ रही होगी, इसी तरह PS2 पोर्ट है जहाँ पे हमारे जो पुराने कीबोर्ड और माउस थे जिनके गोल कनेक्टर होते थे इनको अटैच करते थे। इसी तरह मॉनिटर को अटैच करने के लिए ये VGA पोर्ट हमारे पास है। इसी तरह USB पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है कि अगर हमने लैन के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करना है तो उसके लिए ईथरनेट पोर्ट है। इसी तरह हेडफोन लगाने के लिए हमारे पास पोर्ट्स होती हैं, माइक्रोफोन को अटैच करने के लिए पोर्ट्स होती हैं। तो डिफरेंट हमारे पास ये पॉइंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे अपनी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। तो पोर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम अपनी किसी पेरिफेरल डिवाइस को अटैच करेंगे। इसके अंदर जो है हम डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर हम अपने कीबोर्ड, USB माउस, इन चीज़ों को हम थ्रू वायर जो है वो अटैच कर सकते हैं। अटैच करने को हम कहते हैं कि इसमें हमने प्लग इन कर दिया, मीन केबल को इंसर्ट करेंगे या कनेक्टर्स के अंदर हम उसको अटैच करेंगे। कनेक्टर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक हम कहते हैं मेल कनेक्टर है, फीमेल कनेक्टर है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है वो किस तरह का हम कनेक्टर जो है वो अटैच करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है पोर्ट्स की टाइप्स हैं, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है। तो सीरियल पोर्ट ऐसी होती है जो ट्रांसमिट करेगी डाटे को, लेकिन एक एक बिट करके 1 by 1 बिट जाएगी, हमारी ट्रैवल करेगी। तो पहले ये बिट जाएगी, फिर ये, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट जाएगी। इसके अंदर हमारा जो रेट, क्योंकि 1 by 1 में ट्रैवल करना है इसलिए इसका रेट जनरली जो है वो स्लो होता है। इसका रेट कितना होता है, तो इसका जो है वो 115 किलो बिट्स पर सेकंड या इससे ज़्यादा हो सकता है। इसके अंदर हमारा माउस, कीबोर्ड या मॉडम्स वगैरह हैं उनको हम सीरियल पोर्ट के साथ अटैच करते हैं। जहाँ पे हमें फास्ट डाटा ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे जो है हम सीरियल पोर्ट को यूज़ करते हैं। आजकल मोस्टली इसका जो यूज़ है वो कम हो गया है, इसकी जगह हम जो है वो USB पोर्ट को यूज़ करते हैं। इसके बाद पैरेलल पोर्ट है। पैरेलल पोर्ट के अंदर जो है मल्टीपल वायर्स जो हैं जा रही होती हैं, जहाँ पे हम अपने डाटे को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। पैरेलल के अंदर हमारी जो स्पीड है ये ज़्यादा होती है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है ये 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड के अंदर है। पैरेलल पोर्ट को हम जो है वो लाइन प्रिंटर पोर्ट या LPT भी कहते हैं।
इसके अंदर जो डाटा की ट्रांसमिशन स्पीड है वो ज़्यादा होती है। जो पुराने हमारे पास प्रिंटर वगैरह थे या डिवाइसेस थी उनको हम पैरेलल पोर्ट के साथ अटैच करते थे। आजकल इन सारी चीज़ों को सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट को यूएसबी पोर्ट ने रिप्लेस कर दिया है। फिर हमारे पास है यूएसबी पोर्ट है, तो यूएसबी हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस है कि डिफरेंट तरह की डिवाइसेज आप एक ही पॉइंट के ऊपर अटैच कर सकते हैं। हमें ये फंक्शनलिटी मिल गई है कि हमारे पास जो भी डिवाइस हो अगर उसका कनेक्टर जो है वो यूएसबी की तरह का है, जैसे हम अपना मोबाइल फ़ोन लगाना चाहें, इसी तरह कीबोर्ड माउस आजकल जो नए अवेलेबल हैं यूएसबी लगाना चाहें, जो भी डिवाइसेज इस तरह की प्रिंटर लगाना चाहें उनको हम यूएसबी पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यूएसबी पोर्ट का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि मल्टीपल तरह की या कैटेगरीज की हम जो है उन डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। आजकल जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बसेस के अंदर भी जो पैड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वहाँ पे आप अपनी यूएसबी को अटैच करके मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, या इसी तरह जो एरोप्लेन वगैरह हैं उनके साथ भी जितने भी मल्टीमीडिया पैड्स वगैरह दिए होते हैं तो उनके थ्रू आप यूएसबी को या मोबाइल को अटैच करके मूवीज़ वगैरह प्ले कर सकते हैं या अपनी मर्जी के जो सॉन्ग हैं उनको प्ले कर सकते हैं। तो हमें यूएसबी पोर्ट का बेनिफिट ये हो गया कि हमें एक यूनिवर्सल चीज़ मिलती है जहाँ पे हम अपनी डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं व्हाट आर द कंप्यूटर बसेस। तो हमने पहले भी कहा था बसेस जो हैं वो दो तरह की होंगी, एक हम सिस्टम बस कहेंगे और दूसरी हमारे पास जो है पेरिफेरल बस है। बसेस का काम ये है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, लेकिन डाटा जब मूव हो रहा होता है तो हमने डाटा कहाँ से रीड करना है और किस डायरेक्शन के अंदर रीड करना है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऐसी बसेस होंगी जो ये बताएंगी कि डाटा रीड करना है राइट करना है, उनको हम कहेंगे कंट्रोल बस है। जो हमें बताएगी कि डाटा किस लोकेशन से रीड राइट करना है उनको हम एड्रेस बसेस कहेंगे। तो जो एक्चुअल डाटा मूव करेंगी उनको हम डाटा बसेस कहेंगे। तो बस हम बेसिकली कहते हैं कि ऐसा पाथ है जिसके थ्रू हमारे जो है वो बिट्स जो हैं या सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है। अब सीपीयू के अंदर हम कहते हैं कि जो है वो कंप्यूटर बसेस अवेलेबल हैं कि डिफरेंट जो डिवाइसेज हैं, जब माइक्रो प्रोसेसर ने रैम के साथ कम्युनिकेट करना है या फ्लैश मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना है तो इन बसेस को वो यूज़ करते हैं। अब हर बस की एक विड्थ होगी कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितनी है, इसको हम कहते हैं कि बस विड्थ है। अब बस विड्थ जो है ये वेरी कर सकती है कि ये 32 लाइन्स हो सकती हैं, 64 लाइन्स हो सकती हैं। तो ये हमारे पास जितनी ज़्यादा इसकी विड्थ ज़्यादा होगी उतनी हमारी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। अब ये जो बसेस हमें कैसे नज़र आती हैं तो बसेस को हम देख लेते हैं। इन जनरल तीन तरह की बसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। एक हम कहते हैं डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। अब इसमें डिफरेंस थोड़ा सा है कि ये जो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल बस का क्या काम है। तो कंट्रोल बस बताती है कि किसी डिवाइस से डाटा को हमने रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है। तो ये जो कंट्रोल एक्शन है ये हमें बताती है। तो ऐसी बस जो हमें कंट्रोल एक्शन बताएगी इसको हम कहते हैं कि ये कंट्रोल बस है। फिर हमारा जो एक्चुअल डाटा ट्रैवल करना है वो डाटा बस के थ्रू करना है। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट बस थी, कंट्रोल बस थी, इसकी डायरेक्शन एक ही तरफ होती है। एक तरफ से ये मराद है कि सीपीयू हमेशा इंस्ट्रक्शन देता है कि डाटा कहाँ से रीड करना है, कहाँ से राइट करना है। जब डाटा एक्चुअली फ्लो होता है तो ये दोनों तरफ से होता है। फिर किस डिवाइस से और किस जगह से डाटा रीड करना है उसके लिए हम जो है वो एड्रेस बस का यूज़ करते हैं। तो ये तीन तरह की हमारे पास इंटरनल बसेज हैं। तो इनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं कि डाटा बस के अंदर जो है ये डाटे को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होगी। ये बाई डायरेक्शनल होगी, मीन सीपीयू से डाटा डिवाइस की तरफ मूव करेगी और डिवाइस से डाटा सीपीयू की तरफ मूव करेगी। इसकी जो विड्थ है 8, 16, 12, 32 और 64 हो सकती है। आजकल जो अवेलेबल हैं या न्यू कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर 64 है। एड्रेस बस है जिसने बताना है कि किस लोकेशन से डाटा पढ़ना है। तो जिस लोकेशन से डाटा पढ़ना होगा वो एड्रेस बस पॉइंट करेगी। एड्रेस बस बताएगी कि हमने अगर रैम से पढ़ना है तो किस जगह से पढ़ना है, अगर हमने कैश मेमोरी से पढ़ना है तो किस जगह से डाटा को पढ़ना है। तो उसको हम कहते हैं ये एड्रेस है। तो एड्रेस जो कम्युनिकेट होता है ये थ्रू एड्रेस बस होता है। एड्रेस बस जो है ये यूनि डायरेक्शन होती है, मीन एक तरफ होती है, सीपीयू से डिवाइसेस की तरफ सिर्फ होगी। इसकी जो बस विड्थ है ये 16 से लेके 32 बिट्स के दरमियान हो सकती है। फिर हमारे पास जो इस कैटेगरी सिस्टम बसेस के अंदर लास्ट बस है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल बस। कंट्रोल बस जो है ये कंट्रोल करती है कि हमने क्या कमांड देनी है और टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन कि डाटा को कितनी देर के लिए रीड करना है या राइट करना है, और साथ डाटा रीड करना है, राइट करना है, डिलीट करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
इसके बाद जितनी भी हमारे पास डिवाइसेज हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, लाइक कीबोर्ड है, माउस है या बाकी डिवाइसेज हैं, इनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक्सपेंशन बसेज हैं। एक्सपेंशन बसेज में जितनी भी हमारे पोर्ट या अडॉप्टर के थ्रू या एक्सपेंशन कॉर्ड के थ्रू अपनी जो डिवाइस अटैच करते हैं, तो उन डिवाइसेज के साथ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना होता है कि जो हमारा सिस्टम यूनिट है इसके साथ हमारी कम्युनिकेशन जो है वो अनेबल हो जाए। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज द पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसने जो है वो अल्टरनेट पावर सप्लाई को इनटू कन्वर्ट करना है इनटू डायरेक्ट पावर सप्लाई, क्योंकि कंप्यूटर ने जो ऑपरेट होना है ये डायरेक्ट करंट के ऊपर होना है, मीन डिजिटल सिग्नल इससे इसने क्रिएट करना है। तो पावर सप्लाई जो है एक कंपल्सरी कंपोनेंट है जिसने पूरे कंप्यूटर सिस्टम को या सिस्टम यूनिट को पावर प्रोड्यूस करनी होती है। और इसके अंदर भी हमारे पास जो है एक कूलिंग फैन होता है जिनमें बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है। उस हीट को डेसिपेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कूलिंग फैन जो है वो एयर को थ्रो करता है आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसके अंदर जो वोल्टेज है जनरली पाकिस्तान के अंदर वो या इंडिया के अंदर है वो 220 से लेकर 240 वोल्टेज तक होता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है वो 110 वोल्टेज को लेता है और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू डायरेक्ट करंट। अब इसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट कंपोनेंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। कहीं पे 24 वोल्ट यूज़ हो रहे हैं, कहीं 12 हैं, कुछ जो डिवाइसेज हैं 6 वोल्ट और 3 वोल्ट को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास अडाप्टर्स हैं। ये अडाप्टर्स जो हैं हमारे, जिस तरह हमारा चार्जर मोबाइल का है, इस लैपटॉप के साथ चार्जर वगैरह आते हैं, तो इनका काम भी सेम है कि इसमें इनपुट के तौर पे इसको ऑल्टरनेट करंट आती है और इसको कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट करंट के। अब यहाँ से जो पावर आती है इसको हम अपनी जो बैटरी है उसमें स्टोर भी कर सकते हैं या और डायरेक्ट हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है पावर सप्लाई के ऊपर चल भी सकता है। तो इसीलिए इसको हम जो है वो अडाप्टर कहते हैं या कन्वर्टर कहते हैं या चार्जर कहते हैं। इसने ऑल्टरनेट करंट को कन्वर्ट करना है जो डायरेक्ट करंट। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही ये सप्लाई होती है जो कन्वर्ट करती है ऑल्टरनेट करंट को इनटू डायरेक्ट करंट, जबकि हमारे लैपटॉप्स या मोबाइल सिस्टम इनके साथ जो है ये अडाप्टर या चार्जर होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं एसी करंट को इनटू डीसी करंट। बैटरी जो है ये स्टोर करने के लिए ताकि हमें जब पावर अवेलेबल ना हो तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल को यूज़ कर सकें, तो वहाँ पे जो है हम बैटरी को यूज़ करते हैं, ये चार्ज को स्टोर कर देती है।